Question number 5. Find the cube root of the question number 1, that is 125 multiply 64 minus 64. You have to find the cube root of this number. 125 multiply minus 64 का हमें निकालना है क्यूब रूट। ठीक है, तो मैंने कहा था 125 का क्यूब रूट कितना होता है? इट्स 5 एंड माइनस 64 का हो जाएगा तुम्हारा -4, दैट इज योर -20 as the answer. Clear? This is the question number 5. Now move to the question number 6. Question number 6, same as the question yesterday we have done as a 4 number. 6 number बोल रहा है तुम्हारा, there are 3 numbers are in the ratio of 2:3:1. The sum of their cubes is 288. Find the number. So the ratios are your 2:3:1. Okay. Let the numbers be, जब भी तुम्हारा नंबर रेशियोज में रहता है उसको x ले लो, ठीक है? नंबर b 2x, 3x and 1x means x. Okay. The sum of their cubes, sum of their cubes is 288. Sum of their cubes मतलब उनका cubes का sum, 2x का cube plus 3x का cube plus x का cube is equals to your 288. Okay. 2x cube कितना होता है? 8x cube plus 3x cube कितना होता है? 27x cube plus x cube कितना होता है? x cube, that is 288. Now I think these are the same variable, we can add together. 27 plus 8 कितना होता है तुम्हारा? 35. Is it 35 plus 1, that is it 36x cube, 288. X cube is equals to 288 divided by 36, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड. होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस. ठीक है, अब क्या करेंगे? डिवाइड. 288 डिवाइड 36 तुम्हारा होता है, 36 का टेबल में आता है तुम्हारा 8 जा 36 1 से 36, 36 8 जा 288. Now x cube is your how much? 8, which we can say that x equals to 8 का क्यूब रूट. मैंने कहा था एलएचएस में अगर क्यूब है वो आरएचएस जाने से तुम्हारा क्यूब रूट हो जाएगा. ठीक है, एंड your which is your how much? X, sorry, which is your x equals to how much? 2. This is the answer. This is the value of x. We got the value of x. Now, as we know that the the numbers are what you have taken? Numbers are 2x, 3x and x. तुमने लिया था तो तुम्हारा x का वैल्यू कितना निकला? तुम्हारा x का वैल्यू कितना निकला? What do you got the x value? That is 2. 2 into 2, that is 4. 3 into 2, that is 6. And x, that is 2. Therefore, the numbers are 4, 6, 2. Is that clear to all of you? So सबका समझ में आ रहा है? सेम क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग कल किए थे, 6 नंबर वही है, मतलब वही रेशियो वाला क्वेश्चन है. वो भले अलग फॉर्मूला का था बट ये तुम्हारा सेम पैटर्न में. दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 8, sorry 6. Now move to the next question number 7. Question number 7 is here.
Find the smallest number of which 1580 must be multiplied to make a perfect cube. Also find the cube root of the perfect cube number of 10. So the question is here in 14580, what must be multiplied to get a perfect क्यूब? ठीक है, परफेक्ट क्यूब मिलना चाहिए। तो सीधी सी बात है, लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ व्हाट 14580 का एलसीएम निकालो। दैट इज 2 7 जा, 2 2 जा, 2 9 जा, 2 0 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, दैट इज 5 5 7 जा, दैट इज 5 2 जा 10, 5 9 जा, again 3 1 sorry 3 2 जा, 3 3 4 जा, 3 3 जा, and 3 81 जा, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा. Okay, so we got the LCM as 2 into 5 into 3 into 3 into 3 and 3 into 3 into 3. No doubt we will make the pair 3 and 3 are the pair. Only these two are the unpair. So what shall we multiply? तो shall multiply 2 into 2 और यहाँ पे और दो 5 चाहिए 5 into 5, तब तो पेयर बनेगा ना। 2 का पेयर मिसिंग है और 5 का पेयर मिसिंग है। So what to be multiplied to this number? That is your 4 into 25, that is your 100. Okay, so therefore 100 to be multiplied, that is 14580 into 100 तुम्हारा होता है 1458000। अब सवाल यहाँ पे एक और यहीं पे लिखा हुआ है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द परफेक्ट क्यूब नंबर। अब ये तुम्हारा परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया है। अब इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ 1458000। होपफुली हमें पेयर तो यहाँ पे मिल चुका था, 3 का तो हम लिख सकते हैं 3 into 3 और 5 का मैंने पेयर लिया 5 and 2, दिस इज 9 10 जा 90। ओके, सो 90 को 3 बार, मतलब 90 इज ए काइंड ऑफ ए नंबर which is no sorry sorry it's a mistake। तुम्हारा यहाँ पे 3 वंस है, 5 and 2, what is how much? We have to take out the LCM again, I think we have already put that। तो उसका हो जाएगा तुम्हारा 1458000 ट्रिपल जीरो, इज इट क्यूब रूट का? मिस्टेक हुआ है हमारे यहाँ से, कहीं मिस्टेक हुआ है। जस्ट अ मिनट, 1580 नहीं होगा यहाँ पे, मिसिंग नंबर ये नहीं। लेट मी राइट प्रॉपर्ली फर्स्ट दिस वन, दिस इज okay fine, already we have here one, we have left one more 2, यहाँ पे 2 एक छोड़ दिए हम लोग। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ जब मैं कुछ पढ़ता हूँ तो आप देख के मुझे बताया करो मैंने क्या कुछ गलत किया है क्या। यस आई लेफ्ट द आंसर, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 into 5। मैंने एक 2 छोड़ दिया था, तो हमें और तुम्हारा इसका एक पेयर में तुम्हारा 5 into 5 चाहिए और इसमें सिर्फ ओनली 2 चाहिए। ठीक है, तो द नंबर विल बी 2, this is 25, 2 is 50, so therefore the number multiplied with 14580, that is 25 2 is 25 2 is 50,
Okay, that is how much? Your 14580 into 50, that is 729. Okay, now the question was asking the cube root of 729,000 cube root is your how much? नहीं, this is the answer. Got it now? तो हमें पहले 14580 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमारा परफेक्ट क्यूब निकलेगा, हमें मिला। हम उसके एलसीएम निकाले, थ्री 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 का पेयर थ्री होता है, थ्री का पेयर थ्री होता है, और यहाँ पे टू इंटू टू बच गया है और फाइव अकेला बच गया है, तो उसका एक पेयर निकाले, वो है टू। और फाइव का जो मल्टीपल नहीं है वो है तुम्हारा फाइव इंटू फाइव। सो दीज आर द मिसिंग मल्टीप्लाई। ये तीनों जो है मिसिंग मल्टीप्लाई नंबर थे, जो कि इस नंबर को परफेक्ट क्यूब नहीं बना रहे थे। जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये परफेक्ट क्यूब बन गया। तो बन के क्या हुआ? 729,000। और तुम चेक करना चाहते हो क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हम क्या निकालेंगे? इसका क्यूब रूट। तो आंसर निकल रहा है 90। यस, इट्स परफेक्ट क्यूब। 729,000 परफेक्ट क्यूब। समझ में आया सबको अच्छे से? यस। सो प्लीज काइंडली स्टूडेंट्स, मैं जब कुछ करता हूँ तुमको दिख रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ छूट गया है, कि मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे बताया करो। यहाँ पे मैं प्रोबेबली में अभी एक तो टू छोड़ दिया था, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे किया है। तो दैट यू प्लीज माइन्यूटली चेक व्हाट आई एम डूइंग। मेरे से मिस्टेक होगा क्योंकि मैं दो तरफा कर रहा हूँ, रफ भी कर रहा हूँ, फेयर भी कर रहा हूँ। तो रफ का क्वेश्चन यहाँ पे फेयर में उतरता नहीं है। और अभी शायद तुमको इसका वैल्यू भी पता चल गया होगा कि रफ का मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैंने रफ में यहाँ पे टू लिखा था, मैंने फेयर में नहीं लिखा। होपफुली एग्जाम में टीचर्स इसका एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं क्योंकि रफ को भी कंसिडर किया जाता है। प्लीज बी केयरफुल फॉर दैट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is your here. That is find the smallest number. Next page. Find the smallest number by which 8232 must be divided to make it perfect. ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ अभी निकालना है कि कितना डिवाइड करने से होगा। 8232 पे क्या डिवाइड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा। तो सेम वे फाइंड द एलसीएम ऑफ 8232। अच्छे से निकालो, चेक करें भी। टू फोर सा, टू वन सा, टू वन सा, टू सिक्स सा, टू टू सा, टू जीरो सा, टू फाइव सा, टू एट सा, टू वन सा, टू जीरो सा, टू टू सा, टू नाइन सा। 1029 will be, I think, 3. 3 3s are 9. 3 4s are 12. 3 3s are again 3. I think not 3. I think 7. 7 49s are and 7. 7. Okay. तो हमें पेयर तो मिला यहाँ पे और यहाँ पे। सो 8232 का तुम्हारा प्राइम फैक्टरेशन होता है 2 into 2 into 2, 7 into 7 into 7 into 3। सो व्हाट शैल बी डिवाइड? जो पेयर नहीं है उसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी पेयर्ड है ना। तो थ्री शुड बी डिवाइड, सो देयरफॉर थ्री टू बी डिवाइडेड टू गेट परफेक्ट टू। लेकिन यहाँ पर भी चेक करना है कि क्या थ्री डिवाइड करने से हो रहा है। यस, 8232 डिवाइडेड थ्री करने से तुम्हारा कितना हो रहा है? 8232 divided 3 is your 2744। Now find the cube root of 2744, and that is 2744 का cube root। Okay, 2744 का होगा तुम्हारा cube root 14, that is
14, यस। तो 2744 इज ए परफेक्ट क्यूब। वहां पे मल्टीपल का था, यहाँ पे डिवाइड का। डिवाइड किस नंबर पे करेंगे जो तुम्हारा एक परफेक्ट क्यूब निकलेगा, और क्या वो परफेक्ट क्यूब किसका क्यूब रूट है वो निकलेगा। क्लियर? इफ यू हैव रिटन, देन आई कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं, है ना। क्या डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बनेगा, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बनेगा। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी हम 4-5 कर चुके हैं। ये हम लोग रिवीजन टाइप क्वेश्चंस को फिर से दोहरा रहे हैं, सो दैट इट विल बी रिकॉल टू द चैप्टर। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। Hope if not written, please tell me. I will move to the last page. Question number 9. Question number 9. That is within a square bracket, 12 square plus 5 square half cube. देखो, बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्रिटिकल नहीं है, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन है। दिमाग लगाना है थोड़ा अच्छे से, सॉल्व तो करना ही है। अब बिना सॉल्व किए छोड़ भी तो नहीं सकते। तो तुम्हारा यहाँ पे 12 स्क्वायर कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 144, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। बाहर में कितना है 1/2। इसके बाहर में क्या है, मैंने कहा था हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, है ना। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, बोला था मैंने। सो 144/25 कितना होता है 169 का हाफ, उसका क्यूब। तो मैंने कहा हाफ का पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट, उसका बाहर में फिर क्यूब। तो 169 किसका स्क्वायर रूट है बता सकते हो। 169 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट है 13। 13 फोन का कारवा 13 का क्यूब। ओके, 13 का क्यूब मीन्स 13 × 13 × 13 कितना हो रहा है। अभी तो 169 निकाले, एक और 13 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा 169 × 13, दैट इज 2197। 2197 समझ में आया कि नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, देखो एक बार सुन लो अच्छे से। क्वेश्चन क्रिटिकल नहीं है, समझने वाली है। क्वेश्चन को स्टडी करो। यहाँ पे सिर्फ नंबर दिख रहा है, कोई एक्स वगैरह तो है नहीं। बस यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है हाफ। हाफ का मतलब मैंने बता चुका था, पहले ही बता दिया था, होता है स्क्वायर रूट। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर तुम्हारा 25। ओके, फिर से बता रहा हूँ, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, उसका पावर हाफ मतलब उसका रूट, स्क्वायर रूट। हाफ मीन स्क्वायर रूट। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, और बाहर में तो पूरा ऑलरेडी क्यूब था, वही क्यूब नीचे 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 आते जा रहा है, और 13 का क्यूब हो गया 2197। क्लियर हुआ सबको, सबको समझ में अच्छे से। ठीक, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 नंबर, दैट इज 10 क्यूब माइनस 6 क्यूब का पावर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट दिया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जब स्क्वायर रूट दिया है तो स्क्वायर रूट ही निकालना है। 10 का क्यूब होता है 100, माइनस 6 का क्यूब कितना होता है 36 × 6 होता है 216। उसका स्क्वायर रूट फिर उसका क्यूब, एक एक स्टेप जाना, अंदर से बाहर जाना, ठीक है, उल्टा मत चलना। नाउ 100 माइनस, सॉरी, अच्छा ये 1000 होगा। 100 का 10 का क्यूब, तो तुम्हारा हो गया 1000 माइनस 216।
होता है 784 का क्यूब। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से सबको? गुड। यस, यहाँ तक समझ में सबको सबको आया। अभी देखो ध्यान से, 784 का स्क्वायर रूट उसका क्यूब। तो 784 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 28। स्क्वायर रूट, स्क्वायर, स्क्वायर, क्यूब नहीं, स्क्वायर रूट, फिर उसका क्यूब। 784 का स्क्वायर रूट हुआ 28, उसका क्यूब होता है तुम्हारा, निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके तुम्हें। ओके, सो तुम्हारा दैट इज हाउ मच? 28 इंटू 28 इंटू 28 करने से तुम्हारा होता है 1568। दिस इज द आंसर। समझ में आया अच्छे से सबको? यस, क्लियर हुआ सबको अच्छे से? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में, प्लीज डोंट स्किप। ये पूरा मैथमेटिक्स है, ये एक्चुअल नंबर मैथमेटिक्स है। यहाँ पे कुछ एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, सब कुछ मिक्स है। तुमको यहाँ पे क्यूब रूट भी दिख रहा है, सॉरी स्क्वायर रूट भी दिख रहा है, क्यूब भी दिख रहा है, स्क्वायर भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्क्वायर है, फिर तुम्हारा स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब। ठीक है, ओनली टू रहेगा, स्क्वायर निकालोगे, हाफ दिया रहेगा कि स्क्वायर रूट निकालोगे, 1/3 दिया रहेगा। तो जरूरी नहीं कि तुम्हारा सवाल में ऐसा रहेगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64, इसका तो आंसर 8 होगा। अगर मान लो ऐसा दिया है 64 का हाफ, ये भी होगा 8, क्योंकि हाफ का मतलब जो होता है, स्क्वायर रूट 64 का मतलब भी वही होता है। किसी का पावर हाफ मतलब उसका स्क्वायर रूट। याद रखो, ये चीज को याद रखो, ये रटने वाली चीज नहीं है, दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है? यस। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यू सी इन बुक में 21952 दिया हुआ है। विच क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2? सो हम 1 का या 2 का, जो तुम आंसर बताया मुझे? 2 नंबर। बट 2 नंबर तो 10 का क्यूब होता है 1000, 6 का क्यूब होता है तुम्हारा 216। ठीक है, 1000 माइनस 216 तुम्हारा होता है 784, और 784 का तुम्हारा होता है, सॉरी स्क्वायर रूट, सॉरी 784 का स्क्वायर रूट है 28, और 28 का हमें निकालना है क्यूब रूट। 28 इंटू 28 होता है, ओके सॉरी इट्स माय मिस्टेक, मैंने स्क्वायर निकाल के छोड़ दिया था। ओके, नहीं स्क्वायर नहीं, मैंने 28 इंटू 2 किया था। ओके, दैट इज अ मिस्टेक, दैट वाज अ मिस्टेक। 28 इंटू 28 इंटू 28। ओके, दैट इज योर होता है 21952। मैंने मैंने क्या किया था, 28 इंटू 2 कर दिया था, 8 नहीं लिखा था मैंने। ठीक है, थैंक यू सो मच, द आंसर इज 21952। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई, तो चाहे वो मैथमेटिक्स इजी हो या हार्ड हो, भले मल्टीप्लाई में बचपन से सीख रहे हैं, हमारे लिए बहुत कॉमन चीज है, फिर भी मुझसे आज मिस्टेक हुआ। ओके, सो मिस्टेक क्या हुआ, मैंने एक नंबर को मिस कर दिया था। तो होपफुली समझ में आ रहा है कि मैथ्स कभी भी स्टेबल नहीं होता है। वट एवर यू थिंक यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। Difference of a two perfect cube is 387 if the cube root of a greatest of the two number. Difference of a perfect cube. डिफरेंस मतलब माइनस,
after two perfect cubes is 387. ये एक परफेक्ट क्यूब है, ये एक परफेक्ट क्यूब है, दोनों का माइनस करेंगे तो 387 निकलेगा। इफ द क्यूब रूट ऑफ द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज 8, अगर ग्रेटर number, if the cube root of a greater of the two numbers is, if the cube root of the greater of the two numbers is 8, हाँ, तो पहला मतलब ऑफकोर्स माइनस जब करते हैं हम बड़ा से छोटा करते हैं, तो ग्रेटेस्ट नंबर का जो तुम्हारा क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है कितना, 8। तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा बताओ। अगर एक नंबर बड़ा नंबर का क्यूब रूट 8 है, तो उसका परफेक्ट क्यूब क्या होगा, 8 into 8 into 8, दैट इज हाउ मच, 8 into 8 into 8 कितना होता है, दैट इज 512। तो द ग्रेटर नंबर इज हाउ मच, इज 512। ओके, सो हमको ग्रेटर से स्मॉलर माइनस करना पड़ता है। 512 माइनस डैश, वी डोंट नो दैट 387 होता है। ओके, तो 387 से 512 क्या माइनस करके 80 बनाएगा, तो उससे माइनस करो। 387 तुम्हारा हो रहा है 125। अब बताओ, क्या 125 और 500 परफेक्ट क्यूब है? यस, ये परफेक्ट क्यूब है किसका, 8 का। ये भी परफेक्ट क्यूब है किसका, 5 का। 5 का है कि नहीं, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। इसका मतलब जो पहला ग्रेटेस्ट नंबर है 512, और दूसरा परफेक्ट क्यूब नंबर है 125, दैट इज 125। दोनों को माइनस करने से 687 निकल रहा है, वो सवाल में दिया है। तो हमें निकालना था दूसरा नंबर क्या है, देयरफॉर अनदर number is your 125. Is that clear to all of you? Find the cube root of the smallest number. तो सीधी सी बात है, ये तो परफेक्ट क्यूब नंबर निकला, वो क्या मांगा है, क्यूब रूट मांगा है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट मतलब क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया अच्छे से? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 इज डन, सॉरी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। I've written mistakenly with 9 number. So 10. Oh, the test yourself is also covered up for your acknowledgement. तुम्हारा मैंने एंटायर इस चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज ABC whatever, अदर देन योर टेस्ट योर सेल्फ भी जो था उसको भी मैंने करवाया। होपलेस स्कूल्स वगैरह में भी नहीं करवाते, ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। दैट टेस्ट फॉर योर सेल्फ मीन्स वो हमारे लिए होना चाहिए, बच्चों के लिए होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने, आई हैव गाइडेड यू द एंटायर 10 क्वेश्चन। तो अच्छे से थोड़ा सा कॉपी वगैरह में लिख लो, है ना। यू हैव डन विच क्वेश्चंस? ओके, वी हैव डन फ्रॉम द 5 नंबर, same along with the 6 is done here, 7 number, 8 number, 9 number, 10 number we have done। अच्छा 9 2 क्वेश्चंस है। किसी को कुछ डाउट है, आज जितना भी क्वेश्चंस हम लोग किए हैं, anyone has any doubt? No doubt? ठीक, ओके, डन।
ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। मैं क्या बोल रहा था, मैं कमिंग मंडे से छुट्टी देने वाला था, ठीक है। तो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ कुछ दिन तक हूँ। अगर तुम लोग अवेलेबल हो तो और 2 दिन थोड़ा क्लास कर सकते हैं क्या? इफ यू से मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन, उसके बाद वेडनेसडे से मैं छुट्टी दे दूंगा। मेरा ट्रेन टिकट कैंसिल हो गया जहाँ जाना था। मैं बोल रहा हूँ कि मंडे एंड ट्यूसडे आई एम अवेलेबल। शैल वी कंटिन्यू a new chapter of biology, because physics chemistry already we have done. Next we will do biology chapter. Okay, Ronald, kindly send me the biology chapter on Monday and Tuesday. We will complete it and then I will give you a holiday. ठीक है? Is that clear to all of you? और जितना मैंने मैथ्स करवाया है ये सारे कॉपी में अच्छे से करना। फुल कॉपी में अगर बोला गया है, सर बोले हैं होमवर्क में, मुझे जहाँ तक पता है, but I'm not going to the deep what the homework has been given. Can you please do that? All the homework should be done within these holidays. And Monday and Tuesday I will take the classes for the biology. और अगर किसी को जाना है, you can go in a holiday, because I cannot approach anyone. I cannot force anyone because it's a holiday for you. ये छुट्टी तुम लोगों के लिए, हम लोग किसी को force नहीं कर सकते. Okay. So far, please send me the Ronald. Please kindly send me the uh, Yes, sir. photo of that pictures of that book of biology chapter. Next chapter what to be done. In the next class we will continue that one. Okay, on Monday we will have class. Okay, Monday ko class hoga. Monday Tuesday class hoga. Please don't ignore that message what I given. Okay, Monday we shall have a biology. For now let it be. Okay, thank you all of you. Have a nice day.